The good politician. A lot of people told us it's an oxymoron. We chose to believe otherwise. Good politics has shaped the future of countries. It has ended slavery, apartheid, colonial rule, and given birth to equality and development. We know that when the best hearts and minds of the country choose politics, transformational change can happen. The 2021 cohort of Indian School of Democracy's The Good Politician is a group of 40 grassroots leaders from 14 different states representing various social, religious, economic and political backgrounds. They have come together for one thing: to redefine public leadership, to become principled leaders with moral courage and imagination. These aspiring political leaders are here to learn with their heads, hearts and hands and reclaim politics as an avenue of seva and public service. We don't look at it as a fellowship. We look at our work as the work of nurturing human beings, of nurturing leaders. तो एक चीज़ जो मुझे गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम में सबसे शानदार लगी, जो लोग आए थे उनमें जो जिजीविशा थी और जो जिज्ञासा थी सीखने की भी और आगे काम करने की, वो बहुत शानदार थी. We have people who've been NREGA workers on the ground. We have people who worked with members of parliament and now want to be in those positions. We have people who are elected representatives at a local level in city and villages and now want to work at a state level and a national level. We have people who've been working with elected representatives for 17 years and now want to make the switch. तो अब तक ऐसा लगता था जैसे लोग बोलते थे मुझे बार बार कि तुम और पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सच बोलने वाला, बेवाक बोलने वाला तो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता. लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ. इस सफ़र में कई साथी हैं जो हम सब जो लोग अच्छा करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो सारे पॉलिटिशियन यहाँ पे मौजूद. It was September 1996. Women's Reservation Bill was first introduced in Parliament, and it has been 25 years. Still, the bill has not passed, even though it has support of all the parties. So it kind of bothers me, angers me, frustrates me. The representation of women has not been there even after so many years. So that is the thing which really influenced me and motivated me to join and try politics. We always talk about how politics needs to be discussed more, practiced more, and it needs to become more mainstream, and the good politician is the best platform to start doing that. I had a fantastic time because I met people who are actually grassroots level politicians. I met people who've got causes close to their hearts and they are working on it. I met people who are lawyers, engineers, and they are now interested in becoming full-time politicians, and that's such wonderful news for our country. And I think we need to have more of these skill building, capacity building programs, because when we have better politicians, our country is going to progress at a much faster rate. अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आए हैं ISD में, अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए हैं. जैसे यहाँ पे ओवैसी साहब आए और राम माधव जी आए, फिर इंटेलेक्चुअल्स लोग जैसे अमिताभ जी आए, चक्षु जी आए. तो अलग अलग विचारधाराओं को ISD के प्लेटफॉर्म से हमको सीखने को मिला है और जिससे हमारा विज़न खुला है. तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर स्किल्स एंड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी व्हाट इट इज़ इन रियल टर्म द पॉलिटिक्स. सो इट्स ब्यूटीफुल. मेरे लिए पर्सनली जो सबसे ज़्यादा उत्साह की चीज़ थी वो थी जो महिलाएं कार्यक्रम में आई हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आई हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में कुर्बानियाँ दी यहाँ तक पहुँचने के लिए. आई थिंक वो देख के कि अंदर से भी कहीं ना कहीं एक खुशी भी होती है और एक सीखने की ललक मेरी खुद की भी बढ़ी है वो सब पूरा देखते हुए. We are not creating something idealistic or theoretical, but we are creating something that's idealistic and yet on the ground. इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्पेस क्रिएट कर रही है, जहाँ पे हम जाके राजनीति के जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हम सीख सकते हैं और एक राजनेता या राजनेत्री के रूप में जो एक बेहतर इंसान बनने की जो गुण है शायद वो हमारे भीतर आ सके. और बहुत ही अच्छा यह स्पेस है, बहुत ही पवित्र स्पेस है मेरे लिए,
क्योंकि मैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीख रही हूँ जो मुझे बड़े समाज में जाने से पहले की एक तैयारी है। Indian politics needs to move out of the politics of caste, politics of religion, politics of community that is just used to get people in power so that they can make money for their personal gains. What we need really is a politics of development, politics of schools, the politics of healthcare, of roads, of employment for everyone, of economic opportunity for everyone. And I think this is the kind of politics that our country needs, and this is the kind of politics that our country needs to truly become what is a developed nation. कहीं ना कहीं थिंकिंग पॉलिटिक्स का एरा आ गया है, नॉलेज पॉलिटिक्स का समय आ गया है। इकोनॉमी नॉलेज हो चला है, इकोनॉमी नॉलेज ड्रिवन हो चला है, बट पॉलिटिक्स को नॉलेज ड्रिवन लाने पे बहुत समय लग रहा है। वह करने की आवश्यकता है और मैं ISD को बधाई देता हूँ कि ISD इस काम पे लगी हुई है। गुड पॉलिटिशियन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यह जानना मानना ज़रूरी है कि आज की राजनीति खोखली हो गई है और इस खोखली राजनीति से एक सुंदर समाज की न कल्पना की जा सकती है, न ही निर्माण किया जा सकता है। एक बदलाव की बयार की एक शुरुआत है और न सिर्फ उम्मीदों की किरण है, बल्कि ऐसा लगता है, महसूस होता है, ये महसूस किया है कि निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और ज़मीनी एक शुरुआत है। जैसे कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं वहाँ पे हमें हमेशा ये कहा जाता है कि कहीं ऐसी भी राजनीति होती है, कहीं ईमानदारी से भी राजनीति होती है, आपको तो हर फन मौला बनना पड़ेगा, आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ISD से जुड़ी तो ISD से जुड़ने के बाद मैंने अलग अलग लोगों को सुना, उनके विचारों को सुना। अगर कोई भी किसी भी पार्टी से है लेकिन वो दिल से इस बात को कह के जाता है कि नहीं, गुड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स। जो एक समाज परिवर्तन का काम है, जो देश को परिवर्तन का काम है, वो शायद 10, 20, 15 या कुछ सालों में करना मुश्किल है। शायद एक पीढ़ी का काम है, 2 पीढ़ी का काम। बट एक जो बड़ी आशा है कि हम क्या वो बीज बो सकते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए भी वो आशा रहे। और वो हम ऐसे देखते हैं कि शायद हमारे हर कार्यक्रम में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो जुगनू की तरह एक आशा जगाएंगे अलग अलग भारत के हिस्सों में। और हम अपना काम पूरी तरह से वैसे ही देखते हैं कि 2047 में जब भारत के 100 साल होंगे आज़ादी के, उस टाइम पे हज़ारों लाखों जुगनू अपने जगह पे अपनी लोकल एरिया में कुछ ना कुछ एक रोशनी दे रहे होंगे जो आशा ज़िंदा रखेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कि भारत में एक सर्वोदय की जगह है जहाँ पे अंतिम व्यक्ति है जो पंक्ति में, उसकी भी पूछ है, उसकी भी एक डिग्निटी है, उसका भी सुनवाई है। और जो आज हमारी डेमोक्रेसी बोलती है कि हर एक वोट की एक वॉइस है, हर एक वोट का एक गणना है, वो सही मायने में होगी। वो सिर्फ वोटिंग मशीन तक नहीं रहेगी, बल्कि मेरी अपनी जीवन में जो इच्छा है, जो मेरा खुद का स्वराज है, उसे पूरा करने की तरफ आई थिंक वो कदम होगा। लोकतंत्र में कोई मसीहा नहीं आने वाला है, हम खुद ही मसीहा हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और ये बात खुद अकेले लोग खोजें और अपने लिए खोजें, इससे बेहतर है कि कोई उनकी मदद कर दे। कुछ नहीं, तो इस खोज में इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी उनकी मदद कर रहा है और मैं इस विचार का बहुत सम्मान करता हूँ। तो मुझे बहुत मजा आता है। एक बहुत बड़ा सवाल और मुद्दा ये है कि देश का आधार क्या है, देश किसका है, किस लिए बना है और किस रास्ते चलना है। ये बहुत बुनियादी सवाल है जो हर राजनेता को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जवाब से ये सवालों का जवाब तय हो रहा है। तो और ये सवालों का एक बहुत बड़ा जवाब सर्वोदय है जो हमारे संविधान में रखा गया है। हमारे संविधान ने दिया हुआ इन सवालों का जवाब सर्वोदय है और हमारे हर काम से उस संविधान और सर्वोदय की भावना को रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो सेशन था उसका मकसद यही था कि सबसे पहले पॉलिटिशियंस को, भावी पॉलिटिशियंस को एहसास दिलाए कि उनके काम की भूमिका क्या है। सिर्फ एक पॉलिसी बनना है, रिप्रेजेंटेटिव बनना नहीं है, उनके काम से ये सवालों का जवाब तय हो रहा है। तो उनके बीच में ये समझ बनाना कि उनके काम का आखिरी लक्ष्य ये है कि देश को सर्वोदय की तरफ ले जाए, यानी कि ये देश सभी का हो, तो ये उनके बुनियादी राजनीतिक समझ में बिठाना ये आज का लक्ष्य है।